Uh, Coming to the third editorial of the day, it's very simple one, and regional turmoil. Now, turmoil means a situation where confusion is there, right? Turmoil means confusion. You can say disturbance. These all are the synonyms, right? Tumult, right? So regional turmoil is there, and what region is it talking about? So it's talking about West Asian region. Now, how it starts in the West Asian region? What is the main point in the West Asian region? So it takes into frame Houthis, it takes into frame Palestine, right? It takes into frame what is going on in Syria as well as in Iraq. Now, the war on Gaza is no longer about Israel and Hamas. Israel has carried out targeted strikes in Lebanon and Syria, killing Hezbollah, Hamas, and Iranian commanders. So, Hezbollah is present in, you will find it is present in Lebanon, right? And Hamas is present in Israel, right? From southern Lebanon, Hezbollah is exchanging fire with Israeli troops. Now, it can be there like Hezbollah is from which country? So you need to remember that Hezbollah is from Lebanon. It's basically in Lebanon, right? As well as Syria, as well as Syria. Whereas Hamas की बात करें तो Hamas is basically uh, a militant outfit, a resistance force, as they would like to call it, from Palestine. Iran-backed militias in Syria and Iraq have attacked the US forces in Syria and Iraq. So Iran is fighting US, and not directly, but that is why it is called as proxy wars. Okay. So the Houthis, again, these are another Iran-backed Yemens. Where are the Houthis from? So they are from Yemen. That is again another fact we come to know. They have turned the Red Sea into a battlefield. तो crisis वेस्ट एशियन रीजन में है, बट क्राइसिस प्रेजेंटली आपको रेड सी रीजन में भी देखने को मिलती है. So this is very important that we come to know. So the US airstrike in Iraq, Syria, and Yemen seek to retaliate against Shia militias. Now that is what is important here is that the US airstrikes in Iraq, Syria, and Yemen seek to retaliate against Shia militias. So which means that all of them, all of these Houthis, Hamas, and all of this is backed by, if they are being backed by Iran, which means that they are Shia militias. Now, Shiites have a long history of battle with Sunni, and that is basically I'm talking about Islam. Whereas if you talk about Sunni, Saudi Arabia as well as Turkey seeks to represent the Sunni, you can say sect. So this is the division in Islam. Two type of sects are there, Sunni and Shia. And Sunni Islamists militants attacked Iran. Again, you will find, so this is another crisis. So Iran ke paas, it's not just about Iraq versus, it's not just about Iran versus USA, right? It is also about Shia versus Sunni. Now, Shia versus Sunni, if we talk about, so Shia are being backed by Iran, Sunni are being backed by Saudi Arabia. But if we closely notice, United States of America and Saudi Arabia were slowly getting on terms, getting on their terms. And you will find that Sunni is also being represented by United Arab Emirates. United Arab Emirates and United States of America had already signed Abraham Accords. So everything was going well between them. Now, suddenly, what is happening is that Iran is backing, you can say, when it comes to Lebanon, so they are backing Hezbollah. And when it comes to Palestine, they are backing Hamas. When it comes to Yemen, Iran is backing Houthis. All of these. So if you talk about Hezbollah, Lebanon and Hezbollah, so this is the crisis in Israel, illegal occupation, Israel's illegal occupation of Palestine, right? Israel's illegal occupation of Palestine since 1967. Okay. So this war is about Israel's illegal occupation. Whereas if you talk about Yemen and Houthis, so we'll find it's a political crisis. It's a territorial crisis. So the nature of the crisis in these two regions are also different.
objectives make them very different, right? So, and this is why it tells you that यमन में शांति समझौता चल रहा था, यमन में शांति समझौता चल रहा था। इराक जो है बहुत समय से शांत था, इराक शांत था। अब इराक में क्या लड़ाई है? तो इराक में कुर्दिस्तान की लड़ाई है, कुर्दिस्तान की लड़ाई है ना। तो इराक में कुर्दिस्तान की लड़ाई है, यही लड़ाई ईरान में भी है, यही लड़ाई सीरिया में भी है, और यही लड़ाई इनकी टर्की से भी है। तो ये एक अलग तरह का रीजन है वहाँ पे जो एक लड़ाई चल रही है। और अभी ईरान ने अटैक किया है पाकिस्तान पे, ठीक है। ईरान इजराइल पे तो अटैक कर ही रहा था, ईरान ने पाकिस्तान के मिलिटेंट आउटफिट पे अटैक किया है, जो कि अभी पता चल रहा है कि बलूचिस्तान वाले इलाके से है, बलूचिस्तान रीजन ऑफ पाकिस्तान से हैं। आप देखेंगे तो ये ऐसा एरिया है बलूचिस्तान कि इसके एक तरफ अफ़गानिस्तान है, इसके एक तरफ अफ़गानिस्तान है, दूसरी तरफ आपको इंडिया दिखाई देगा और एक तरफ आपको ईरान दिखाई देगा। मतलब इंडिया से सटा नहीं है, बट हाँ काफ़ी करीब है वो बॉर्डर, ठीक है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका है। तो जो मिलिटेंट आउटफिट है पाकिस्तान का, उसमें ईरान ने अटैक क्यों किया? क्योंकि ईरान में अभी एक अटैक हुआ था, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, जिसमें करीबन 100 लोग, 100 पीपल वर किल्ड। तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की आपसी लड़ाई नहीं है, ये उस रीजन में जो है पूरा एक कॉन्फ्लिक्ट अलग ही चल रहा है। कहीं पे ये टेरिटोरियल क्राइसिस की तरह पे देखा जा रहा है, कहीं पे ये पॉलिटिकल क्राइसिस पे है, और कहीं पे ये टेररिज्म का भी रुख ले लेती है। तो ये 3 तरह के 3 फोल्ड चैलेंजेस हैं। इसमें ऑथर कह रहा है कि जो इमीडिएट सोल्यूशन है वो सीज़ फायर का ही है, इमीडिएट सोल्यूशन सीज़ फायर का है। और सीज़ फायर के साथ साथ आपको क्या करना है? आपको इज़राइल और हमास के बीच में जब आप पीस टॉक करवा देंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं कि जब इज़राइल हमास द ओल्डेस्ट कॉन्फ्लिक्ट जब सेटल्ड हो रहा है तो बाकी सब तो हो ही सकता है, राइट। सो दिस इज सेइंग दैट व्हेन अभी रिसेंटली अमेरिका ने बड़ा पॉजिटिव वे में बोला था कि जो मिडिल ईस्ट है काफ़ी समय से शांत है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, मिडिल ईस्ट इज़ क्वाइटर टुडे देन इट हैज़ बीन इन 2 decades, पिछले 20 सालों में। द अब्राहम अकॉर्ड्स were on a strong footing. Saudi Arabia and Israel were moving closer towards normalization. Iraq had become quieter. Gulf Arabs and Iran had reached a rapprochement. Reached a rapprochement मतलब settlement इनके बीच में हो चुका था, गल्फ कंट्रीज़ और ईरान। अगेन इट इज़ टॉकिंग अबाउट सऊदी अरेबिया एंड ईरान, राइट। और सीज़ फायर यमन में भी था। लेकिन इन सभी चेंजेस में से ओल्डेस्ट क्राइसिस जो है वो इग्नोर की जा रही थी, और अक्टूबर 7 को हमास ने उसको फोरफ्रंट पे ले आए। गाज़ा पट्टी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो अब पैलेस्टीन जो है वापस से वेस्ट एशिया में सामने आ गया, लेकिन इसकी वजह से ट्रिगर हो गया। क्या हो गया? लिट फायर्स या ट्रिगर, उसने दबे गड़े हुए मुर्दे जो थे निकाल दिए बाहर, और इसको अब डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस की तरह देखा जा रहा है सिंस 1967। दैट वाज द वॉर दैट हैपेंड बिटवीन अरब्स एंड इज़राइल। एंड व्हाट इज़ द मेन पॉइंट्स? ऑथर यहाँ पे ये कहता है कि नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। देखिए ये मिलिशियाज़ हैं जो भी हैं, हमने देखा ये सारे मिलिशियाज़ हैं। मतलब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये नो रिप्रेजेंटेशन, दे आर जस्ट फाइटिंग। ये कोई गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन कंट्रीज़ की यमन की गवर्नमेंट इनको बैक कर रही है या पैलेस्टीन की गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। ये मिलिशियाज़ हैं, दे आर जस्ट फाइटिंग फॉर देयर ओन पर्पस, फॉर देयर ओन नैरेटिव जो भी। और इन मिलिशियाज़ को दूसरा कंट्री है, ईरान है कहीं पे सऊदी अरेबिया है, वो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। इज़राइल आफ्टर ऑल बहुत ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाया है गाज़ा में। हाउथीज़ जो हैं 7 साल से सऊदी बॉम्बिंग के बाद भी सर्वाइव कर रहे हैं, और उन पर अमेरिका की एयर स्ट्राइक का कुछ असर पड़ेगा नहीं। ईरान जो है खुद को एक ताकत की तरह दिखाना चाहता है, लेकिन उसकी अपने पास कुछ कमज़ोरियाँ हैं जिसको वो नज़रअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन इसी की वजह से वो अनप्रिडिक्टेबल भी है। भाई जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है वो कुछ भी कर सकता है। तो ईरान को क्या अनप्रिडिक्टेबल बनाता है? उसकी इनहेरेंट वीकनेसेस उसको अनप्रिडिक्टेबल बनाती हैं, ठीक है। द ओल्ड ऑर्डर विच वॉज एंकर्ड बाय अमेरिकाज डोमिनियरिंग रीजनल प्रेजेंस, यानी कि इस वेस्ट एशिया में अमेरिका अपनी प्रेजेंस से रीजन को शांत करके रखा हुआ था, आज इन टैटर्स मतलब ख़त्म हो चुका है, तहस नहस हो चुका है। तो अभी क्या है, वेस्ट एशिया को रिक्वायरमेंट है एक नए सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की। कैसे आएगा? तुरंत सीज़ फायर करिए गाज़ा में, इजराइल फ़लस्तीन के साथ शांति समझौता कराइए, उसको स्प्रिंग बोर्ड की तरह यूज़ करिए रीजनल सिक्योरिटी के लिए। और मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन है? इजराइल है, अरब नेशंस हैं, ईरान, यूएस
और उनके रिस्पेक्टिव अलाइज एंड प्रॉक्सीज, ये सब मेन स्टेक होल्डर्स हैं। तो इनके बीच में इसराइल पैलेस्टीन का जो ट्रूस है, यहाँ से चीज़ स्टार्ट होती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट।